All right. Now let's talk about allergy. What exactly is allergy? Allergy, बच्चा, is nothing but an exaggerated immune response of the body towards certain allergens. ठीक है. अब जब मैं बोलते हैं exaggerated, you might have seen, you might have come across people, वो exaggerate things, जो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, मतलब you're making a mountain out of a molehill. ठीक है. तो मतलब कहते हैं ना किसी को बढ़ाते राई का पहाड़ बनाना, वैसा वाला. तो बॉडी के साथ भी कुछ ऐसा होता है. कभी कभी देर आर सर्टन केमिकल्स जिनके प्रति बॉडी इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देती है. लाइक वी रिएक्ट, एवरीथिंग अराउंड अस इज स्टिमुलस, बी इट फिजिकल स्टिमुलस, केमिकल स्टिमुलस, बायोलॉजिकल स्टिमुलस. बट हम हर चीज़ को देख के रिएक्ट करते हैं. बट कभी कभी क्या होता है, बॉडी किसी सब्सटेंसेस के प्रति ओवर रिएक्ट कर देती है. एंड दैट्स what is allergy, like the hypersensitivity towards certain substances or chemicals. That's allergy. अब जैसे just like cancer causing agents are carcinogens, antibody generating substances are allergens. In the same way, allergy causing substances or allergy causing agents are referred to as allergens. ठीक है. अब you might be allergic to pollen grains, dust, mites, certain food items, animal dander which is hair, right, etc etc. ठीक है. अब पता है इनफैक्ट pollen grains में बच्चों को पता है एक स्पेसिफिक चीज़ बताना, जैसे you might be exposed to a specific type of pollen grain but might not be exposed to the other. You might be allergic to a specific type of pollen grain but might not necessarily be exposed to another kind of pollen grain. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल let's say somebody is allergic to sunflower pollen grain. तो ऐसा नहीं है कि आप जितने भी pollen grain है, जितने भी प्लांट्स के, आप सबसे allergic हो कि नहीं. हो सकता है कि जब रोज़ का पॉलन ग्रेन से आप कांटेक्ट में आओ, आपको कुछ हो ही ना एज सच. ठीक है. सो यू माइट, इट्स वेरी वेरी हाईली स्पेसिफिक. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से डस्ट से तो लॉट ऑफ पीपल आर एलर्जिक दीज डेज. So am I. In fact I kind of developed a respiratory infection because of dust. तो वही है, you are allergic, but I'm like partially, not like highly allergic to dust, but yeah, to some extent I am. But one thing that I'm highly allergic to is sunlight, like the intense bright sunlight. I'm definitely very allergic to. I can't stand for more than 1 minute. So yeah. So in the same way, on similar grounds, you might be allergic to a specific food substance. You might be specific to a certain food item, a certain chemical. जैसे कितने सारे चीज़ें होती हैं. We put a lot of these lotions and body wash, body stuff like moisturizers and all. And उसमें कोई एक particular ingredient होता है which does not really suit you, and you have these breakouts, and you have acne, and you have redness, and you have swollen skin. So it's कुछ chemicals होते हैं. You might be exposed to. You might be allergic to anything in general. ठीक है. अब एग्जैक्टली देखो होता क्या है, व्हेन यू एक्सपोज टू दीज एलर्जन, जब आप किसी ना किसी तरीके से, फॉर एग्जांपल लेते यू एलर्जिक टू अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, और आप कहीं ना कहीं से उसके कांटेक्ट में आते हो, तो बॉडी कुछ ऐसे सिम्टम्स शो करती है, जैसे आपको पता चल रहा है कि ओके मे बी द बॉडी इज नॉट रियली लाइकिंग दिस सब्सटेंस और लाइकिंग द फैक्ट दैट हैव कम इनटू कांटेक्ट विद दिस सब्सटेंस. तो बॉडी फिर ऐसे बताए कि कैसे, लाइक बॉडी कैन नॉट स्पीक लाइक अस. ठीक है. हमारी बॉडी हमारी तरह ऐसे बता के तो नहीं बोल सकती कि यार मुझे दिक्कत हो रही है इसके आने से, या आई एम रियली नॉट लाइकिंग दिस पर्सन और दिस केमिकल, जस्ट ask him to leave, ऐसा तो नहीं बोलेगी. So it tends to show certain symptoms. कुछ symptoms दिखाई देते हैं, स्किन हो गया, redness हो गई, swelling हो गई, there's swelling, there's inflammation, sneezing, the person starts sneezing a lot, आप sneeze करने लगते हो. You do tend to develop watery eyes, like runny nose, watery eyes, stuffed nose किसी में. ठीक है. Bronchoconstriction, ये basically ये जो bronchi और bronchioles होते हैं आपके, basically part of the respiratory tract, वो contract होने लगते हैं. थोड़ी breathing difficulties होती हैं. The blood pressure suddenly reduces. और ये आप एक केस भी देखोगे which is like a very severe case of allergy, allergic response में, allergic reaction में आप देखोगे भी कि बॉडी सडनली ओवर रिएक्ट्स, कहते हैं ना. और एक ऐसी कंडीशन होती है where a lot of things happen all together, just okay. अभी मैं उसके बारे में पढ़ाऊंगी, which is anaphylactic shock, we'll discuss that. तो exactly क्या होता है, ये बॉडी को जैसे सिम्टम्स शो करें, ब्लड प्रेशर एकदम से रिड्यूस हो जाएगा. सो all of these are due to mast cells and basophils. ठीक है. ये सब mast cells और basophils की वजह से होता है, because they secrete certain chemicals. और देखो exactly हो क्या रहा है बॉडी में, let me just tell you that. It's like देखो हम सबको पता है, जैसे कि याद है हम जब इम्यूनोग्लोबुलिन जब डिस्कस कर रहे थे couple of minutes back, we discussed the point that ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन के लेवल है, इम्यूनोग्लोबुलिन E specifically increases during allergic reaction. तो एक्चुअली में देखो क्या होता है ना, ये मैंने बहुत ही ऑल द एनसीईआरटी में द मैकेनिज्म इज नॉट गिवन एंड एनीथिंग इज नॉट गिवन. और एक्चुअली मैं बताऊँ, दिस इज अ वेरी वेरी डिटेल्ड मैकेनिज्म एंड हैज़ अ लॉट ऑफ डेप्थ टू इट. बट trust me, if we just touch the tip of the iceberg, and if I were to just give you like a brief basic understanding कि exactly हो क्या रहा है बॉडी में, तो उसको हम बहुत सिंपली समझने की कोशिश करते हैं. एक्चुअल मैकेनिज्म तो बहुत डिटेल्ड है एंड लिटरली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल, राइट. ठीक है. तो ऑफकोर्स दैट यू लर्न इन मेडिकल कॉलेजेस एंड इन योर रिस्पेक्टिव बायोलॉजी कोर्सेज in future or while pursuing your undergrads and postgrads.
ठीक है। तो बट अगर मैं एक सुपरफिशियल व्यू दूँ तो इट्स नथिंग बट देखो क्या होता है ना एग्जैक्टली, लेट्स से कोई एलर्जन है एंड आप उससे कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है, और लेट्स से यू हैव अ पोलन स्पेसिफिक, लेट्स से यू एलर्जिक टू स्पेसिफिक पोलन ग्रेन, और वो पोलन लेट्स से आपकी बॉडी में एंटर किए एंड एक्सपोज हुआ। तो हम सबको पता है, अभी हमने पढ़ा हमारे पास 2 तरीके के सेल्स होते हैं, वी हैव बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड देन वी हैव टी लिम्फोसाइट। बी सेल्स आर व्हाट सिक्रीट एंटीबॉडीज, और टी सेल्स कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होते हैं बी सेल्स को, ठीक है। टी सेल्स देम सेल्स डू नॉट रियली सिक्रीट एंटीबॉडीज, तो ये बी सेल्स के ऊपर होती है एंटीबॉडीज ऑन द सर्फेस ऑफ द बी सेल्स, दे हैव दीज इम्यूनोग्लोबुलिन। और एलर्जिक रिएक्शंस में हम स्पेसिफिकली इम्यूनोग्लोबुलिन ई की बात करते हैं। लेट्स से देयर इज अ बी सेल व्हिच हैज इम्यूनोग्लोबुलिन ई ऑन इट्स सर्फेस। तो भी एलर्जेंस जब हमारी बॉडी में एंटर करेंगे ना, दे विल एक्चुअली बाइंड टू दीज इम्यूनोग्लोबुलिन ई। इम्यूनोग्लोबुलिन ई बेसिकली जो एंटीबॉडीज हैं, इन पे एंटीबॉडी पे जो है बाइंडिंग साइट्स होंगी। बाइंडिंग साइट, अब ये एलर्जन जब आके एंटीबॉडी से बाइंड करेगा अपनी बाइंडिंग साइट्स पे, तो लाइक बी सेल काइंड ऑफ गेट्स अ मैसेज एंड काइंड ऑफ डिफरेंशिएट्स। बी सेल एक तरीके से डिफरेंशिएट हो जाता है, प्लाज्मा बी सेल, इफेक्टिव बी सेल में। और बी सेल क्या करते हैं, बी सेल ना दे स्टार्ट सिक्रीटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई है, बी सेल में सिक्रीट करना स्टार्ट करते हैं। बी सेल बोलते हैं अच्छा मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कोई एलर्जन आके बाइंड कर गया, अब एक काम करो, अब तुम रिलीज हो। अब जैसे ही इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज होते हैं ना बच्चा, दे स्टार्ट गोइंग एंड दे बाइंड टू मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, ठीक है। ये किससे जाके बाइंड करने लगते हैं, जाके बाइंड करने लगते हैं मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल्स आई एम श्योर यू नो इट्स अ टाइप ऑफ व्हाट, it's a type of blood cell, right? We have basophils, acidophils, neutrophils and then monocytes and lymphocytes, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बी सेल्स ना मास्ट सेल से जाके, ठीक है, और बेसोफिल से जाके बाइंड करने लगते हैं। एंड वंस दीज इम्यूनोग्लोबुलिन ई गोज एंड बाइंड्स टू द मास्ट सेल, हम कहते हैं अब हमारी जो बॉडी है वो सेंसिटाइज हो गई है, बॉडी सेंसिटाइज हो गई है, लाइक अब बॉडी इज लाइक काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं। लेट्स से कि कोई फॉरेन इन्वेडर आया, वी वर नॉट अवेयर, ठीक है, और जैसे ही वो आया उसने घर में थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज किया, एंड सडनली वी लाइक ओके मीन्स दिस पर्सन इज़ नॉट अ फैमिली, राइट, दिस पर्सन इज एन एनिमी। तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी हथियार इकट्ठे कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है देखा, नाउ वी आर रेडी, ठीक है। अब ये इंसान अगर दोबारा हमारे पास एंटर करेगा, सो नाउ वी आर रेडी विद द वेपन्स, राइट, नाउ वी आर वेपनाइज। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि बॉडी वेपनाइज हो जाती है, बॉडी बिकम सेंसिटाइज, राइट। तो अब जैसे ही इम्यूनोग्लोबुलिन ई बेसिकली मास्ट सेल्स से आके बाइंड करते हैं, मास्ट सेल्स काइंड ऑफ बिकम सेंसिटाइज्ड। अब क्या होता है, अब जब ये सेम एलर्जन अब बेसिकली जब ये सेम एलर्जन, ठीक है, सेम एलर्जन जब कांटेक्ट में आएगा मास्ट सेल के, द सेम एलर्जन कम्स इन कांटेक्ट, ठीक है, इन द बॉडी अगैन, जब अब हम सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, तो पहली बार एज सच आप देखोगे ना, पहली बार में तो कोई रिएक्ट नहीं करेगी बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं होगा ऐसे, क्योंकि बॉडी समझने की कोशिश करेगी, बॉडी इज काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग इटसेल्फ। बट द नेक्स्ट टाइम व्हेन द सेम एलर्जन कम्स, राइट, और व्हेन द सेम एलर्जन इज एक्सपोज्ड, राइट, टू द बॉडी, अब क्या है, अब हमारे पास जो मास्ट सेल्स हैं, हमारे बेसोफिल्स हैं, वो सेंसिटाइज हो चुके हैं, मीन दे आर काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड नाउ। तो अब जैसे ही एलर्जन आएगा एंड इट बाइंड्स टू दिस इम्यूनोग्लोबुलिन ई ऑन द मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, तो अब मास्ट सेल्स तुरंत मतलब दे आर रेडी, दे वर रेडी, अब लाइक दे वर जस्ट वेटिंग फॉर समबडी टू कॉज देम अ ट्रिगर। अब जैसे ही एलर्जन आया और जैसे ही वो ट्रिगर कॉज किया, मास्ट सेल्स और क्या कहते हैं बेसोफिल्स अब तो एकदम सशक्त हैं, वो तुरंत स्टार्ट कर देंगे कुछ केमिकल्स को रिलीज करना, लाइक हिस्टामिन, हेपारिन एंड सर्टोनिन, विच इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी इन्फ्लेमेशन एंड ऑल, ठीक है। तो बेसोफिल्स या ये मास्ट सेल्स जो हैं, दे स्टार्ट सिक्रीटिंग केमिकल्स लाइक हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन एक्चुअली में एक वेसोडाइलेटर होता है, तो बेसिकली आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल है, अब हिस्टामिन सिक्रीट होगा तो क्या करेगा, आपकी ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। तो कहते हैं ना कभी किसी का ब्लड प्रेशर एकदम ड्रॉप कर देता है, वाई, आपका जो बेसिकली ब्लड वेसल्स हैं वो एकदम डायलेट हो गई, तो ब्लड का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, सो द ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप्स, ठीक है। तो तो जैसे ही अब क्या होगा, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन ई अब मास्ट सेल्स, ये सेंसिटाइज मास्ट सेल्स या बेसोफिल्स पे प्रेजेंट इम्यूनोग्लोबुलिन ई से बाइंड करेगी, सो दीज सेल्स काइंड ऑफ स्टार्ट सिक्रीटिंग हिस्टामिन व्हिच इज अ वेसोडाइलेटर, काइंड ऑफ स्टार्ट सिक्रीटिंग हेपारिन जो एक एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होने देता, ठीक है, ब्लड क्लॉट कर सकता है ना, बिकॉज लॉट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, स्टार्ट सिक्रीटिंग सर्टोनिन, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, सो ऑल ऑफ दिस स्टार्ट्स हैपनिंग, ठीक है। तो यहीं पे मैंने इनफैक्ट यही सेम चीज़ भी दे रखी है, लाइक से यहाँ पे देखो एग्जाम सेंसिटाइजेशन विच इज़ लाइक इनिशियल एक्सपोजर व्हेन यू एक्सपोज टू द एलर्जन फॉर द फर्स्ट टाइम। लेट्स से पॉलन फ्लावर है, फ्लावर में से कोई पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, एलर्जन एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम में, आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, ठीक है, और जब ये एक्चुअली में इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो प्रेजेंट हैं बी सेल्स पे, उनके कांटेक्ट में आएगा, बी सेल्स विल डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स, और बी सेल्स एंटीबॉडीज रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं, एंटीबॉडी स्पेशली IgE। अब ये जो एंटीबॉडीज है, दे विल गो एंड दे विल अटैच टू दीज मास्ट सेल्स, जब ये जाके मास्ट सेल्स से अटैच हो जाती हैं एंड, ठीक है,
अब ऑन सेकेंड अब प्राइमरी एक्सपोजर इज डन, ठीक है, अब हमारी बॉडी सेंसिटाइज हो चुकी है। अभी पहली बार तो ऐसा कोई मेजर रिएक्शन होता ही नहीं है बॉडी में, इनफैक्ट कोई रिएक्शन नहीं होता। अब दूसरी बार देन देयर इज अ सेकेंडरी एक्सपोजर टू द सेम एलर्जन, व्हेन द एलर्जन कम्स एंड बाइंड्स टू द एंटीबॉडीज एंड द मास्ट सेल्स आर रेडी, दे वर सेंसिटाइज्ड, राइट। तो अब वो क्या करेंगे, तुरंत वो कुछ ग्रैन्यूल्स, दे विल डीग्रैन्युलेट, ठीक है, वो डीग्रैन्युलेशन शो करेंगे, मतलब ग्रैन्यूल्स को रिलीज करेंगे, लाइक हिस्टामीन, हेपारिन, सेरोटोनिन, ये सारे केमिकल्स जो हैं दे विल बी रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, एंड दिस इज व्हाट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एलर्जिक रिएक्शंस दैट यू सी एज सच, ठीक है। अब इसमें ही ना बच्चा एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है विच इज रेफर टू एज एनाफाइलैक्टिक शॉक, विच इज रेफर टू एज व्हाट, इट इज रेफर टू एज एनाफाइलैक्टिक शॉक। अब दिस इज़ लाइक द मोस्ट एक्सट्रीम केस ऑफ एलर्जी, ठीक है, एनाफाइलैक्टिक शॉक सबसे एक्सट्रीम केस है, मतलब इट्स लाइक अ सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, जो मतलब मिनटों में हो जाता है, विद इन मिनट्स टू द एक्सपोजर, लाइक, ठीक है, किसी चीज़ जैसे मान लो, जैसे कि मैंने बोला इट्स नथिंग बट लाइक अ एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स, बट कहते हैं ना कि जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं जिन्हें जो हमें पसंद नहीं है, जिससे देख के हम ओवर रिएक्ट करते हैं, बट कुछ लोग तो होते हैं जो हमें एक आँख नहीं भाते, लाइक जिनको देखते ही या ब्लड स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो कुछ इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें बॉडी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, और वो जैसे ही बॉडी के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एनी वे द मिनट दे कम इन कॉन्टैक्ट द बॉडी गोज मैड एंड डिजर्व, ठीक है। सो इट्स लाइक अ लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होता है विच अकर्स विद इन मिनट्स ऑफ एक्सपोजर टू अ स्पेसिफिक एलर्जन। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आप एलर्जिक हो टू अ स्पेसिफिक एनी एलर्जन फॉर दैट इंस्टेंस, सो द मिनट यू कम इन कॉन्टैक्ट, राइट, तो जो इम्यून सिस्टम है हमारा बेसिकली, ठीक है, ये हमारे बी सेल्स, टी सेल्स, ठीक है, बोथ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, इट रिलीजेज अ फ्लड ऑफ केमिकल्स, मतलब इतने सारे केमिकल्स लाइक दीज ओनली, हिस्टामीन, हेपारिन, सेरोटोनिन, ऐसे कई सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी में सडनली, ठीक है, देयर अ फ्लड ऑफ केमिकल्स विच इज रिलीज्ड इनटू द बॉडी, और इतने सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं एक साथ, देयर इज अ सडन ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर, बीपी इतना लो हो जाता है, इनफैक्ट इट इफ यू गो बाय दिस एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स, आई थिंक आई रेड दिस समवेयर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट low blood pressure and it's like 30% lower than the person's baseline, तो मतलब baseline होती है कि इतना बीपी तो होना चाहिए, उससे भी 30% कम हो जाता है, इमेजिन इट्स 30% लोअर दैन द पर्सनस बेसलाइन, राइट। तो और नॉट जस्ट दैट, आपका बेसिकली ब्लड प्रेशर तो ड्रॉप हो रहा है सडनली, देयर इज वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड यू कैन ब्रीथ, देयर सडनली नैरोइंग ऑफ द एयरवेज, एंड इतना सब एक साथ हो रहा होता है ना, देयर इज अ फ्लड ऑफ केमिकल्स विच आर बीइंग रिलीज, ठीक है। उसके बाद आपका बीपी अचानक से इतना लो हो जाता है 30% बिलो द पर्सनस बेसलाइन, एंड द ब्लड वेसल्स बेसिकली स्टार्ट नैरोइंग, सो देयर इज नॉट ब्लड वेसल्स, द एयरवेज, द ब्रोंकियो बेसिकली ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, इतना सब कुछ अचानक से होता है ना, द बॉडी काइंड ऑफ गोज इनटू अ शॉक, बॉडी को एकदम से झटका लगता है कि भाई ये क्या हुआ, एंड द बॉडी गोज इनटू अ शॉक। और इनफैक्ट अगर ये तो ऐसा होता है कि तुरंत हमको काफ़ी सारे इंजेक्शन देने पड़ते हैं, अभी जैसे कि मैं बताऊंगी भी आपको, ठीक है, कि अचानक से इतना भयंकर होता है ना सडनली, कि अगर इफ़ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली, अगर आपने तुरंत इसका कुछ नहीं किया, तो पर्सन इवन डाइज, इट्स फेटल, इट्स लाइफ थ्रेटनिंग, ट्रस्ट में। तो कोई भी ट्रिगर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई इंसेक्ट का स्टिंग हो गया, ठीक है, कोई स्पेसिफिक इंसेक्ट का आपको स्टिंग से एलर्जी है, तो मान लो उस इंसेक्ट ने जैसे ही बाइट किया, बॉडी पागल हो जाएगी एकदम से। इट कुड बी एनी फूड आइटम, स्पेसिफिक फूड आइटम, इट कुड बी लॉट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइज्ड रेजिन, स्पेसिफिक कोई लेटेक्स, या फिर कोई एंटीबायोटिक, स्पेशली इसलिए तो हम बोलते हैं हम अपनी मर्जी से कोई भी एंटीबायोटिक खा लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने रिसेंट में कहीं सुना था कि एक इंसान ही इज़ नेवर हैड पैरासीटामोल इज एंटायर लाइफ, तो उसने ज़िंदगी में कभी पैरासीटामोल नहीं खाई है, और पता नहीं मे बी ही वाज मे बी ही हैड अ फीवर और समथिंग, एंड ही पॉप्ड द पैरासीटामोल एंड ही डाइड इमीडिएटली। तो अब एक लोगों में फैल गया, इट्स नॉट लाइक कि बेसिकली पैरासीटामोल खाने से वो मर गया, बट हो सकता है उस पैरासीटामोल, वो एक एंटीबायोटिक तो है ही, ठीक है, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक ऐसा केमिकल हो, ठीक है, जिससे वो पर्सन हाईली एलर्जिक हो, एंड विद इन मिनट्स ही डाइड गाइज, ठीक है। सो एंटीबायोटिक्स भी इनफैक्ट होती हैं, विच इज़ वाई एंटीबायोटिक्स ओनली हैव टू बी टेकन अंडर द प्रिस्क्रिप्शन, और बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ मेडिकल प्रोफेशनल। अपनी मर्जी से कुछ भी दवाइयाँ मत खा लिया करो, ठीक है, बिकॉज यू माइट बी एलर्जिक एंड देन इट माइट बिकम फेटल। अब एनाफाइलैक्टिक शॉक की जैसे मैं बात करूँ, इन केस ऑफ स्पम एलर्जेंस, कुछ एलर्जेंस के केस में कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, कुछ फूड आइटम्स हो गए, या फिर कुछ भी कोई भी इमीडिएट ट्रिगर होता है, ठीक है, विच कैन कॉज अ सीवियर रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर विच इज़ लाइक almost 30% lower than the person's blood baseline, और and this could be fatal, ठीक है। तो ये एकदम जानलेवा हो सकता है, कितना हानिकारक है, तो जानलेवा हो सकता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जी कुड बी ये तो कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि हे फीवर से, किसी बेसिकली हे फीवर हम बोलते हैं लाइक व्हेन यू एलर्जिक टू स्पेसिफिक पोलन ग्रेन्स, दैट्स रेफर टू एज हे फीवर, ठीक है। फिर एस्थमा भी कुछ क्या है, एस्थमा भी एक हाइपर सेंसिटिविटी है ना टू
to specific chemicals, asthma is also hypersensitivity, when the body becomes sensitive to certain substances, ठीक है, और आपको वो एक wheezing sound आता है. अब देखो, एनाफाइलेक्टिक शॉक कैन बी कॉज्ड बाय एन एलर्जिक रिएक्शन टू अ ड्रग, फूड, सीरम, इंसेक्ट वेनम, एलर्जन एक्सट्रैक्ट और केमिकल. जैसे कि मैंने बोला, एनाफाइलेक्टिक शॉक आपको किसी भी कारणवश हो सकता है. यू माइट बी एलर्जिक टू अ स्पेसिफिक ड्रग और फूड और सीरम और इंसेक्ट, ठीक है. आप किसी से भी एलर्जिक हो सकते हैं. सम पीपल हु आर अवेयर ऑफ देयर एलर्जी. अब कुछ लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हाइपर एलर्जिक है. दे माइट हैव हैड, उनके पास ऐसा एक बार ऐसा इनकाउंटर हो चुका है, ठीक है. तो वो बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं, स्पेशली लोग जिन्हें पता है कि दे आर प्रोन टू एनाफाइलेक्टिक शॉक्स टू दिस सब्सटेंस, ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार जब आपको एलर्जी होगी यू विल एक्सपीरियंस एन एनाफाइलेक्टिक शॉक. वो बहुत ही कुछ केसेस में होता है कि कोई स्पेसिफिक फूड आइटम में कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी को भा ही नहीं रहा है, मतलब एक आँख नहीं भाता है, और जैसे ही वो बॉडी इसके कॉन्टैक्ट में आती है, बॉडी इमीडिएटली स्टार्ट्स रिलीजिंग लॉट ऑफ केमिकल, तो बॉडी एकदम शॉक में चली जाती है. तो सम पीपल हु आर अवेयर ऑफ देयर एलर्जिक रिएक्शन, जो अवेयर होते हैं, हु गॉट देमसेल्व्स टेस्टेड, उन्हें पता है कि वो इससे एलर्जिक हैं, तो दे कैरी एन इमरजेंसी एनाफाइलैक्सिस किट. वो एक इमरजेंसी किट रखते हैं अपने पास, एनाफाइलैक्सिस किट. उसमें बेसिकली इंजेक्टेबल एफिनेफ्रिन होता है, एंड देयर इज लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. स्पेशली इंजेक्टेबल एफिनेफ्रिन वो ऑफकोर्स ये एनसीईआरटी में सच है नहीं, बट वेरी एनसीईआरटी में ये तो दे रखा है कि आपको अगर अपने सिम्टम्स को कम करना है तो आप एंटीहिस्टामिन, सर्टोनिन, बेसिकली एंटीहिस्टामिन्स, ठीक है, और क्या कहते हैं स्टेरॉइड्स या फिर एड्रेनलिन वगैरह ले सकते हो. बट एज सच एनसीईआरटी भी मेंशन इतना नहीं करती है, ठीक है. तो जैसे कि मैं बोल रही थी, तो सम पीपल हु आर अवेयर ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन, कुछ लोग जिन्हें पता होता है अपने एलर्जी के बारे में कि अच्छा ये हमें एलर्जी कर रहा है, तो वो द कैरी एन इंजेक्टेबल एपिनेफ्रिन. वो इंजेक्टेबल एड्रेनलिन, इंजेक्टेबल एपिनेफ्रिन करते हैं. बिकॉज बच्चा क्या होता है ना, अचानक से आपका एकदम ब्लड प्रेशर इतना ड्रॉप हो जाता है. सो बेसिकली द मिनट यू टेक इन दैट, आपका बीपी एकदम से लो हो जाता है. यू हैव डिफिकल्टी ब्रीदिंग, आप सांस नहीं ले पा रहे हो. दिस एवरीथिंग गोज फॉर अ सिक्स, राइट. द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है. अब जैसे ही आप एकदम से एड्रेनलिन लेते हो ना, आपको एड्रेनलिन बूस्ट मिलता है बॉडी में. सो इट्स अ ड्रग विच स्टिमुलेट्स द एड्रीनल ग्लैंड्स एंड इंक्रीजेस द रेट. और आपको पता है जब एड्रेनलिन रिलीज होता है, इवन ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है एकदम. ब्लड स्टार्ट्स पंपिंग मोर एफिशिएंटली, ब्लड और तेजी से धड़क रहा है. तो क्या ना, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है. क्योंकि बीपी लो से हमें बीपी को इंक्रीज करना है. भाई द ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप्स, द पर्सन माइट डाई, ठीक है. तो क्या कहते हैं, इस एड्रेनलिन लेने से क्या है, एक तरीके से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा. दैट माइट इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ द हार्ट बीट, ठीक है. और या ठीक है, तो एनसीईआरटी भी कुछ ऐसा ही बोलती है. एनसीईआरटी बोलती है कि लेट मी जस्ट चूज अ बेटर कलर, गिव मी अ मोमेंट, and there we go. तो एनसीईआरटी भी सेम चीज़ बोलती है. when you have gone to a new place and suddenly you started wheezing, you started sneezing, wheezing for no explained reason, and when you went away your symptoms disappear. एनसीईआरटी भी एग्जैक्ट सेम चीज़ बोलती है. एनसीईआरटी बोलती है, लेट्स से you've gone to a new place, आप किसी नई जगह गए कभी कभी, और you suddenly started sneezing, आप अचानक से छींकने लगे, आप छींके मारने लगे for no explained reason. आपको समझ में नहीं आ रहा कि I was all right couple of minutes back, अचानक से मुझे इतनी छींके क्यों आ रही है. you have no explained reason, आपके उसकी स्पेसिफिक रीज़न नहीं है. और जैसे आप वहाँ से चले गए, you came back to normal, symptoms disappeared. This happened to you. क्या ये कभी आपके साथ हुआ है? Some of us are sensitive to some particles in the environment. हम में से कुछ लोग होते हैं sensitive to certain particles in the environment, ठीक है. अब the above mentioned reaction could be because of allergy to pollen, mites, etc., which are different in different places. अब ये जो ऊपर मैंने symptoms mention किए या एनसीईआरटी ने जो mention किया कि आप आप कहीं गए, अचानक से आप you have this you started sneezing, coughing, एकदम से runny nose हो गई, your eyes become red, ठीक है. कि क्यों हो सकता है? It's because you might be specific to a certain substance which is present in the atmosphere, air में. जैसे कोई specific pollen के लिए आपको एलर्जी हो सकती है. जैसे आप इसके कॉन्टैक्ट में आए तो बॉडी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है, बॉडी बता रही होती है कि लिसन आस्क दिस सब्सटेंस टू गो अवे. तो वो एक रिस्पॉन्स होता है बॉडी का. So this exaggerated response of the immune system to certain antigens, right, or to certain allergens which are present in the environment is called as allergy. The substance to which such an immune response is produced are called allergens. वो substance जिनके प्रति हम immune response हमारी body generate करती है, उनको हम क्या बोलते हैं? allergens बोलते हैं, ठीक है. The antibodies produced to these are of IgE types, ठीक है. और जो antibodies produce होती हैं इन allergens के against, the antibodies which are kind of produced against these allergens, बच्चा ये IgE type की होती हैं. Common examples of allergens are, common examples क्या हैं allergens के? mites and dust, ठीक है. जो डस्ट में की mites are these कीड़े. हिंदी में I don't know exactly what we call them, but as far back as I can remember, मतलब इनको एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कुछ कीड़े, certain basically these are parasitic. If
मेरे दिमाग में जो एक एग्जांपल आ रहा है बेसिकली, आपने आई एम श्योर स्केबीज का सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड ऑफ कंडीशन लाइक स्केबीज, डेमोडिकोसिस, डेमोडिकोसिस, you might have heard about that. If you have not, it's fine. डेमोडिक्स माइट्स बेसिकली माइट्स होते हैं जो आपकी बॉडी पे रहते हैं या बेसिकली आपकी स्पेसिफिकली हेयर फॉलिकल्स पे रहते हैं, एंड वहीं पे द ईटिंग और वहीं पे स्किन पे बेसिकली काफ़ी सारे, वन सेकेंड, I'm sure you would have heard of condition like scabies वगैरह आपने सुना होगा, जहाँ पे scabies mites होते हैं. ये basically कहीं ना कहीं they burrow into your skin and they cause this itching, rashes, ठीक है, और मतलब ऐसे बॉडी पे से बहुत एक एलर्जिक रिएक्शन आपको प्रॉपर नज़र आता है, ठीक है. सो देयर कुड बी माइट्स इन डस्ट, तो ये डस्ट में कुछ कीड़े जो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में अगर आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं. देयर कुड बी सर्टन पोलन्स, एनिमल डेंडर एक्सेट्रा. सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है. ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो बॉडी शो करती है. अचानक से आपको छींकें आ रही हैं, आपकी आंखें लाल हो गई, आंखों से पानी आ रहा है, दिस रनिंग नोज, दिस स्टफ्ड नोज, ऑल्सो कंजेशन भी होता है, एकदम से नाक बंद हो जाती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ऑल ऑफ दोज थिंग्स कैन हैपन. एलर्जी, अब देखो एनसीआरटी क्या बोलती है. एनसीआरटी बोलती है एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सर्टोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स. एनसीआरटी बोलती है कि एलर्जी बेसिकली क्या होती है, दिस रिलीज ऑफ सर्टन केमिकल्स, बॉडी के द्वारा कुछ केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, सर्टोनिन हो गया, फ्रॉम द मास्ट सेल्स, ठीक है. हमें अब एग्जैक्टली पता है राइट कि कब जाके वो होते हैं, ठीक है, जब वो मास्ट सेल्स बेसिकली सेंसिटाइज हो जाते हैं, ठीक है. फिर सेकेंड टाइम जब क्या कहते हैं, ये सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होगा सेम पैथोजन से, और जब वो पैथोजन या वो एलर्जन जब हमारे सेंसिटाइज मास्ट सेल्स में प्रेजेंट इम्यूनोग्लोबुलिन ई से बाइंड करेगा, दैट्स व्हेन द इम्यूनो बेसिकली दैट्स व्हेन द मास्ट सेल्स एंड द बेसोफिल्स दे स्टार्ट रिलीजिंग दीज केमिकल्स. तो अब हमें एग्जैक्टली पता है हाउ डज इट हैपन, ठीक है. एंड द मिनट दे स्टार्ट रिलीजिंग दीज केमिकल्स आर व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज symptoms like inflammation, redness, and all of that. For determining the cause of allergy, the patient is exposed to or injected with very small doses of possible allergens and the reactions are studied. ठीक है. अब now if you want to determine the cause of allergy कि exactly आप किस चीज़ से allergy को, तो एक बेटा पूरा एक टेस्ट होता है, there's a whole patch test which happens, ठीक है, ठीक है. अब बेसिकली आपकी बॉडी में ना ऐसे अलग अलग चीज़ें हो, इट्स क्वाइट लॉन्ग प्रोसीजर, ऐसे कम से कम 400-500 सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे आपका बैठाल के आपको एलर्जिक टेस्ट कराया जाता है, ठीक है. और बहुत छोटी छोटी डोसेज में आपको सभी एलर्जेंस को इंजेक्ट किया जाता है देखने के लिए कि कहाँ पे आप किस चीज़ से एग्जैक्टली एलर्जिक हो, ठीक है. द यूज़ ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी. जैसे कि मैंने बोला, इफ़ यू यूज सर्टन सब्सटेंस, एंटीहिस्टामिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, बिकॉज इन केसेज लाइक एनाफाइलेक्टिक शॉक, जब BP 30% लो हो जाता है, लोअर देन द बेस लाइन, दैट्स व्हेन ऑल ऑफ दीज केमिकल्स आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी. Somehow modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitivity to allergens. More and more children in metropolitan cities of India, they suffer from allergies and asthma due to sensitivity to the environment. This could be because it's a protected environment which was provided early in life. अब देखो, अब नाउ लोग इसके दो पॉसिबल कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं. देखो, एनसीआरटी बोल रही है कहीं ना कहीं जो हमारा मॉडर्न डे लाइफस्टाइल है ना, ये बहुत बड़ा कारण है हमारी वीक इन इम्यूनिटी का. जैसे अभी इम्यूनिटी तो एक ऐसा टर्म हो गया ना जो हमने कोविड में इतना सुन लिया है, लाइक एवरीबडी इज सो अवेयर ऑफ इट, ओवर अवेयर ऑफ इट, ठीक है, ठीक है, वेयर दे आर ईटिंग लॉट ऑफ कार्ब्स. बट हमें एक्चुअली वो नौबत ही क्यों आए. आप देखो, पहले लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, वॉज अ डिफरेंट थिंग, बट पहले लोग इतना बीमार भी नहीं पड़ते थे जितना आज के टाइम में हम पड़ जाते हैं. इट्स वाई बिकॉज वी आर वेरी, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप देखोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप देखोगे तो बच्चे बाहर की दुनिया से एक्सपोज ही नहीं है. जब जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू देयर होम्स, दे लिव इन दोस 2 BHK 3 BHK, और वही उनकी दुनिया. दे हार्डली स्टेप आउट टू प्ले, दे रिड्यूस टू गैजेट्स. खेलना है तो घर में ही खेल रहे हैं, हम मिट्टी में नहीं जा रहे. दे नेवर एक्सपोज टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच वी personally, if I were to tell you my experience, I have been exposed to okay, so we own a cow, right? So basically we would play around with her, and we've lived in town, right? It's not like we belong to village or anything, but I along with my friends, we would play with sand, and we would play with ऑल ऑफ दीज, ठीक है. हम मिट्टी से खेले हैं यार, तो कहीं ना कहीं उसके बावजूद हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक है. तो इमेजिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जहाँ बच्चे
दे आर डिस्गस्टेड बाय ऑल दीज थिंग्स। तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि क्या कहते हैं उनकी इम्यूनिटी, जब वो किसी के कांटेक्ट में ही नहीं आ रहे, किसी एलर्जी, जब वो इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में मतलब घूम रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट माई कजन, दे हैव ऑल ऑफ दीज व्हाट डू यू कॉल देम, दे हैव दीज एयर प्योरीफायर्स इंस्टॉल्ड, डाइसन के एयर प्योरीफायर्स हैं हॉल्स में, रूम्स में, टू मेक द एयर प्योरीफाइड। ठीक है, अब एक बात बताओ, एयर में नेचुरली चलो माइक्रोब्स होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बाहर तो आप वैसे ही नहीं जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो तो आप गेन ही नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप एक्सपोज ही नहीं हो रहे हो एज सच एलर्जन से। ठीक है, और घर में भी अगर मान लो एयर के थ्रू अगर कोई इसमें एयरबोर्न पैथोजेंस या एयरबोर्न एलर्जेंस हैं, तो वो भी प्योरीफायर्स लगवा रखे हैं, तो वो भी नहीं हो रहे हैं। तो बच्चा इतना सेंसिटिव हो जाता है ना, तो अचानक से मान लो अगर वो किसी एलर्जन के कॉन्टैक्ट में आता है, तो बॉडी को पता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी कभी डेवलप ही नहीं हुई है, कभी बॉडी ऐसे किसी के कॉन्टैक्ट में आई, सडनली काइंड ऑफ what basically happens is because of the protected environment आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो ना कि जैसे ही आप किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आते हो, बॉडी जस्ट सडनली कांट टेक इट एंड इट बिकम रियली ओवरवेलमिंग। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। we're going to do this once again. Alright, so now let's quickly read NCERT. NCERT बच्चा बोलती है when you've gone to a new place and suddenly you started sneezing and wheezing for no explained reason when you went away, your symptoms also disappeared. Did this happen to you? So NCERT बोलती है बच्चा ऐसा देखो, आपने अक्सर देखा होगा कि लेट्स से आप किसी नई जगह गए और अचानक से आप खांसने लगे, आपको छींकें आ रही हैं एंड सडनली यू हैव नो एक्सप्लेन रीजन। आप बोल रहे यार अभी तो मैं ठीक था, अचानक से मुझे क्या हो गया? एंड व्हेन यू वेंट अवे, जैसे आप वहाँ से चले गए, योर सिम्टम्स ऑल्सो डिसअपियर्ड। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ? ऑफकोर्स हुआ होगा। सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट। हमें से कुछ लोग होते हैं वी आर काइंड ऑफ सेंसिटिव टू सर्टन पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं एनवायरनमेंट में जिसके प्रति हम सेंसिटिव होते हैं, कि इट कुड बी you might be allergic to pollen, or could be mites in the dust, etc. डिफरेंट होते हैं डिफरेंट प्लेसेस में। तो हमारी जो बॉडी होती है वो एक एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स देती है, राइट? देयर इज एन एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स बाय द बॉडी। तो बॉडी एक तरीके से एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के इम्यून रिस्पॉन्स देती है टूवर्ड्स दीज एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, और इसी को हम बोलते हैं एलर्जी। ठीक है, नाउ द सब्सटेंसेस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस दे आर कॉल्ड एलर्जेंस। वो सब्सटेंसेस जिनके प्रति हमारी बॉडी की एक्चुअली इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं सब्सटेंसेस को बच्चा हम बोलते हैं एलर्जेंस। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दीज आर ऑफ IgE टाइप। जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं अगेंस्ट दीज एलर्जेंस वो होती हैं IgE टाइप। ठीक है, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ एलर्जेंस के, तो वो है माइट्स इन डस्ट, पॉलेंस, एनिमल डेंडर, एक्सेट्रा। Symptoms of allergic reactions could include sneezing, watery eyes, runny nose, difficulty in breathing and all of these. ठीक है, अगर मैं बात करूँ सिम्टम्स की, तो क्या क्या सिम्टम्स एक्सपीरियंस होते हैं? यू हैव सडनली, आप अचानक से छींक रहे हो, खांस रहे हो, यू हैव वाटरी आइज, यू हैव रनिंग नोज, यू हैव कंजेस्टेड नोज। ठीक है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? Now, allergy is due to the release of certain chemicals like histamine and serotonin from the mast cells, and now we exactly know the reason why. ठीक है, एलर्जी किसकी वजह से हो सकती है? एलर्जी could be due to the release of certain chemicals। क्या आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, बाय द मास्ट सेल्स, बाय द बेसोफिल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। और अब हमको एग्जैक्टली पता है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये एक पहली बात तो ये इनिशियल इनकाउंटर में होता ही नहीं है। पहले बार जो इनकाउंटर होता है पैथोजन का, तब तो हमारी बॉडी सेंसिटाइज हो रही होती है। ऑन सब्सिक्वेंट इनकाउंटर, ठीक है, ऑन लेटर इनकाउंटर, जब बाद में सेम पैथोजन से हमारी बॉडी एक्सपोज होती है, तो जो हमारे सेंसिटाइज मास्ट सेल्स हैं, ठीक है, अब जब ये सेम एलर्जन जब इम्यूनोग्लोबुलिन ई के कांटेक्ट में आएगा विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ दीज मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल, अब ये क्या होंगे? अब ये मास्ट सेल्स एक्चुअली में अपने अंदर से केमिकल्स और ग्रैन्यूल्स रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हिस्टामिन, सर्टोनिन, हेपारिन, ऑल ऑफ दैट, एंड दैट इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज सिम्टम्स ऑफ एलर्जी दैट यू सी, इन्फ्लेमेशन एंड ऑल ऑफ दैट. Now, the thing is, for determining the cause of allergy, the patient is exposed to or injected with very small or possible doses of possible allergens, and the reactions are studied. ठीक है, now if you want to determine the cause of allergy कि exactly आपको किस चीज़ से एलर्जी है, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर मतलब तो बेसिकली जो सबसे कॉमन एलर्जेंस होते हैं, ठीक है, तो बॉडी बेसिकली जो आपका डॉक्टर है, ठीक है, वो आपको ऐसे इंजेक्ट करेगा विथ स्मॉल डोसेज ऑफ वेरियस एलर्जेंस। ठीक है, छोटे छोटे डोज में ऐसे लाइक एक तरीके से पैच टेस्ट की तरह आप समझो कि एक पैच टेस्ट टाइप होता है, तो वो आपको छोटे छोटे डोसेस देगा अलग अलग पैथोजेंस की, अलग अलग एलर्जेंस से। तो जहाँ पे बॉडी वो एक रेडनेस या इन्फ्लेमेशन शो करेगी, तो द डॉक्टर इज एबल टू रिड्यूस कि अच्छा इस पर्टिकुलर एलर्जेन से इस इंसान को दिक्कत है, ठीक है, तो यू शुड काइंड ऑफ रिफ्रेन योर सेल्फ और नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद दैट। बट एक्चुअली में ना लिटरली वो इतना लंबा टेस्ट होता है। If I have never personally undergone such an allergic test, but I've had friends who have shared the experiences, and you've told me
इट्स सो लॉन्ग, यू नो, लाइक कम से कम 300-400 एक्चुअली चीज़ें हैं जिनसे आपको वो टेस्टिंग होती है, ठीक है, वेरियस फूड आइटम्स, ठीक है, कई सारी चीज़ों से एक्सपोज, तो किसी ना किसी चीज़ से तो आपको एलर्जी होगी, तो किसी ना किसी से तो निकलती ही है फॉर श्योर, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे एनसीआरटी बोलती है the use of drugs like antihistamine, adrenaline and steroids quickly reduce the symptoms of allergy, you know, if you're using the, तो वही बोलते हैं कि जैसे कि एनाफेलेक्टिक शॉक के केस में जब बीपी इतना लो हो जाता है 30% लोअर देन द पर्सन बेस लाइन, तो हम कुछ एक्चुअली इंजेक्टेबल ड्रग्स देते हैं, लेकिन ये यू नो एंटीहिस्टामिन्स तो देते हैं, एड्रेनलिन देते हैं स्पेसिफिकली, स्टेरॉइड्स, यू नो, ये सारे जो केमिकल्स हैं, ये सारे जो ड्रग्स, ठीक है, ये जब आप इंजेक्ट करते हो बॉडी में, दे क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स। तो ये जो इतने सारे सिम्टम्स है कि एकदम बीपी लो हो गया, यू नो, द ब्लड वेसल एकदम डायलेट हो गई है, जिसकी वजह से बीपी, यू नो, लो हो गया है, though, you know, all of these drugs kind of, you know, help you reduce or curb down the symptoms of allergy, ठीक है। अब इनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं, आई वुड रियली लाइक टू स्पीक अबाउट इट। somehow modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitivity to allergens. More and more children in metro cities of India, they are suffering from allergies and asthma due to sensitivity to the environment. This could be because of the protected environment which has been provided early in life. अब देखो, अब you might have two perspectives on this। देखो, एंचुअली बोल रहे हैं कि आज की, यू नो, आज के टाइम में मॉडर्न डे लाइफस्टाइल भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, यू नो, फॉर द लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी, एंड आई सेकेंड दैट। मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस, मोर एंड मोर children in the metro cities are suffering from allergies like asthma and all। तो एग्जैक्टली देखो क्या है, अब देखो जैसे मैं अपने बचपन की बात बताऊँ, या फिर आई एम श्योर, यू नो, पीपल माई एज ग्रुप द, यू नो, वुड बी एबल टू रिलेट टू इट, कि although, you know, we're born and brought up in towns and not villages, but somewhere, you know, during our childhood we have played, right? हम मिट्टी में खेले हैं, हम प्लेग्राउंड में खेले हैं, हम, you know, so we were kind of exposed to all of these, ठीक है। अब ऐसे मिट्टी में देखो, कहने को मिट्टी में, you know, there might be dust mites, there might be a lot of, you know, allergens, ठीक है, बट हमारी बॉडी एक कहीं ना कहीं उनके कांटेक्ट में आई, ठीक है। अब आई तो शायद हो सकता है कि कभी कभी, यू नो, हमने थोड़ा बुखार भी आया हो, बट कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में वो मेमोरी सेल्स डेवलप होते रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी बिल्ट होती रही ओवर द ईयर्स। बट आप अगर यहीं पे देखो, यू नो, इन you know, metropolitan cities, you know, people are living in their, you know, 2 BHKs, 3 BHKs, and the kids have hardly stepped out, you know, बच्चों की ज़िंदगी है, you know, they go to school, they come back, they go to tuition classes, they come back home, there's hardly any time, the kids are, you know, doing 10,000 activities at their homes, जो बाहर बेचारे निकलते ही नहीं हैं, you know, they're not exposed to the social life, और वो बिल्कुल बाहर निकलते ही नहीं हैं, तो आप किसी पैथोजन के कांटेक्ट में ही नहीं आते हो। आप एक बात बताओ, आप किसी एलर्जी या किसी पैथोजन के कांटेक्ट में ही नहीं आओगे, तो ऐसे तो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी बिल्ड कैसे होगी? बिकॉज एक्वायर्ड इम्यूनिटी पूरे उसका मैकेनिज्म ही ऐसे है कि ओनली व्हेन यू एक्सपोज टू द पैथोजन विल योर बी सेल्स डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स, तब जाके, यू नो, मेमोरी बी सेल्स डेवलप होंगे, और मेमोरी बी सेल्स डेवलप होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके वो स्टोर होंगे फ्यूचर यूज़ के लिए, एंड देन, यू नो, ऐसे कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। बट अब बच्चे इतने प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, दे हार्डली स्टेपिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ठीक है, उन्हें वो तो किसी पैथोजन के कांटेक्ट में ही नहीं आ रहे। अब मान लो अब वो कहीं बाहर गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट माई कजन्स, यू नो, जैसे कि अगर मैं अपने कजन्स की भी बात करूँ, दे हैव ऑल दीज, यू नो, एयर प्योरीफायर्स ऑफ डाइसन इंस्टॉल्ड इन देयर रिस्पेक्टिव हॉल्स इन रूम्स, ठीक है। तो इनफैक्ट एयर में भी अगर जो नॉर्मल एलर्जन है, ठीक है, वो उनसे भी एक्सपोज नहीं हुआ है, बिकॉज एयर प्योरीफायर्स इज क्लीनिंग ऑल द एयर दैट्स देयर। तो इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में ग्रो हो रहे हैं कि द मिनट दे स्टेप आउट एंड, यू नो, से द कंज्यूम्स एनीथिंग इन जनरल, ठीक है, अगर वो किसी स्पेसिफिक कोई स्ट्रीट फूड खा ले रहे हैं कुछ, they become so, you know, they kind of completely the immunity goes for a 6, right? They are suddenly are not able to take it, ठीक है। तो इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं ना, that, you know, the body suddenly does not know how to deal with it। Why? because आप कभी भी इन एलर्जन से पहले तो एक्सपोज हुए नहीं हो, तो कहीं ना कहीं बिकॉज बच्चे आज के दिन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में भी बड़े हो रहे हैं, ये सब उसका भी नतीजा है, कह सकते हैं। अब देखो, अब यहीं से कॉन्सेप्ट आता है ऑटो इम्यूनिटी का। सो नाउ दैट वी आर डन विद, यू नो, इम्यूनिटी and we're done with, you know, all of these things, now let's also discuss a term called autoimmunity। अब the name itself kind of gives you a hint, right? autoimmunity क्या मतलब है, आपको क्या समझ में आ रहा है इस वर्ड से? तो जैसे कि देखो, आपको यहाँ पे लिखा भी है मैंने, यू नो, यूजुअली इन हायर वर्टेब्रेट्स देयर इज एन एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है। अब एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन बाय दिस?
देखो, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। अब अच्छा, अगर मैं ऑटो इम्यूनिटी की बात करूँ तो देखो एक ऐसा मिथ भी है जो लोग, कई सारे लोगों को लगता है कि ऑटो इम्यून डिसीजेज जो होती हैं दे आर बिकॉज ऑफ अ वीक इम्यून सिस्टम, बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो चुका है कि आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, बट एक्चुअली दैट्स अ मिथ, राइट। ऑटो इम्यून डिसीजेज आर नॉट कॉज्ड बाय वीक इम्यून सिस्टम। इनफैक्ट ऑटो इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूँ तो ऑटो इम्यूनिटी में बच्चा कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना, एक्चुअली अगर मैं बताऊँ स्पेसिफिकली, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, ये इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है कि वो इट्स मिस्टेकनली स्टार्ट्स अटैकिंग इट्स ओन बॉडी सेल्स, ठीक है। आपके खुद की बॉडी सेल्स पे हमला करने लगते हैं। तो कुछ चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, कभी कभी होता है ना, कैसे हमारे घर वाले या हमारे टीचर्स हमारी फेवर में ही कुछ बोल रहे थे, ऑल्दो द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर एज वी से, एंड इट्स नॉट शुगर कोटेड, ठीक है। तो सच हमेशा जैसे कड़वा होता है, तो मान लो अगर हमें कोई चीज़ समझा रहे हैं, हमें कोई चीज़ बता रहे हैं और वो हमें अच्छी नहीं लग रही है, ऑल्दो हमें पता है वो हमारे लिए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो पराया लगने लगता है। हमें लगता है यार ये हमसे क्यों कह रहे हैं, हम पे क्यों इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, क्यों हमसे ऐसे हमें हर चीज़ के लिए रोकते टोकते रहते हैं, और वो सही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब आप अपनों को ही पराया समझने लगते हो ना, दैट्स हाउ यू कैन ट्राई एंड रिलेट टू इट। तो जब बॉडी खुद के सेल्स को ही पराया समझने लगती है, खुद के सेल्स को ही इट स्टार्ट्स ट्रीटिंग इट्स ओन हेल्दी बॉडी सेल्स लाइक अ पैथोजन, और खुद ही के सेल्स पे जब अटैक करने लगती है ना, दैट इज व्हाट इज रेफर टू एज ऑटो इम्यूनिटी. So autoimmunity is nothing but when the body, or when the immune system kind of wrongly targets and starts attacking its own healthy cells, ठीक है, खुद की हेल्दी सेल्स को अटैक करने लगता है, दैट इज़ व्हाट इज़ ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एक्चुअली में काफ़ी फेटल होते हैं। एक्चुअली देखो एग्जैक्टली अगर इसका मैकेनिज्म बताऊँ तो क्या होता है, हम हायर वर्टिब्रेट्स जो है लाइक अस, वी हैव एन एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है। हम जैसे देखो, हम जैसे हैं, मान लो अगर हमने ह्यूमंस की एग्जाम्पल से इसको रिलेट करो, तो हमें बताया कि हमारे अपने कौन है, हमारे पराए कौन है, ठीक है। हमें पता है कि दिस पर्सन इज़ गुड फॉर अस, और दिस पर्सन विल इफ़ अगर ये इंसान कुछ भी कहता है अच्छा या बुरा, ये हमारे भले के लिए कहेगा। वहीं पे एज अपोज टू सम पीपल हु आर ऑल दिस प्रिटेंशियस, गुड ऑन द फेस एंड बैक बाइटर्स ऑन द बैक, ठीक है। तो वैसे वाले लोग तो हम पहचान लेते हैं कि अपना कौन है, पराया कौन है, वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश। हमारे पास भी एबिलिटी कुछ इसी तरीके से हमारी बॉडी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके पास भी एबिलिटी है कि वो अपने और पराये में डिस्टिंग्विश कर लेती है, ठीक है। विच इज़ वाई जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो वो पहचान लेती है कि यार नहीं, ये मेरा खुद का नहीं है, ये बाहर से आया है, ये हमें अटैक कर सकता है, राइट। तो कहीं ना कहीं हम हायर वर्टिब्रेट्स में हमारी इम्यून सिस्टम के पास एक एबिलिटी होती है कि वो डिस्टिंग्विश कर लेता है कि सेल्फ कौन है और नॉन सेल्फ कौन है, राइट। लाइक हमारा अपना क्या है, पराया क्या है। नाउ व्हेन दिस एबिलिटी इज लॉस्ट, ठीक है, जब ये एबिलिटी लूज हो जाती है, दैट लीड्स टू समथिंग कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी. ऑटो इम्यूनिटी क्या, विच इज नथिंग बट ब्रेक डाउन ऑफ द इम्यून सिस्टम्स एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. कि अब जब ये क्षमता खत्म हो जाए, कभी कभी होता है ना कि हम वी आर डीलिंग विथ सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, कि जब हमें अपने ही पराये लगने लगते हैं, ठीक है, जब हमें अपनों की ही बात बुरी लगने लगती है और हमें अपने ही लगते हैं कि यार ये मुझसे ऐसे क्यों कह रहा है, जब हम अपनों से ही दूरी बना ले और अपनों पे ही पलट के वार करने लगे, ठीक है, हमें अपने ही बुरे लगने लगते हैं. तो कुछ बॉडी के साथ भी ऐसे ही होता है, दिस ब्रेक डाउन ऑफ द इम्यून सिस्टम एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा कि अच्छा ये मेरे खुद के सेल्स हैं और ये मेरे खुद के दिस इज अ पार्ट ऑफ माई ओन बीइंग एंड दिस इज फॉरेन. तो व्हेन द बॉडी इज नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट, जब बॉडी डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाती, बॉडी की जो एबिलिटी है, क्षमता ही खो जाती है कि व्हेन इट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, जब वो फ़र्क ही नहीं पहचान पा रही कि अपना कौन है पराया कौन है, तो बॉडी क्या करती है या फिर हमारे इम्यून सेल्स क्या करते हैं, दे स्टार्ट अटैकिंग देयर ओन दे स्टार्ट अटैकिंग द सेल्फ सेल्स. वो अपने खुद हेल्दी सेल्फ सेल्स को अटैक करने लगते हैं एंड विच लीड्स टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स. ठीक है, अब एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को आप पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि अच्छा इस वजह से ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया. ठीक है, होता है बॉडी में. अभी लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन, इम्यूनोलॉजी पूरी इस पर काफ़ी रिसर्च चलती है एक्चुअली. आप देखोगे तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात करो, किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक म्यूटेशन आ गई या फिर कोई म्यूटेशन थी बॉडी में जिसकी वजह से यू माइट हैव हर्ड, ठीक है, कई सारे जेनेटिक ऑर्डर्स हमारी एनसीईआरटी में भी मेंशन है. ठीक है, कई सारे के बारे में लूपस आपने सुना होगा. फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस वर्ड वे बैक when I heard Selena Gomez, if I'm not wrong, had developed lupus, जो एक्चुअली में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है. ठीक है, तो एक्चुअली में तो कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है कि बॉडी में मान लो कुछ अबनॉर्मैलिटी आ गई, कोई स्पेसिफिक म्यूटेशन आ गई, कोई अननोन रीजन स्पेसिफिकली पिन पॉइंट करके आप नहीं बता सकते कि दिस वॉज द रीजन वाई देयर वाज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन द बॉडी. ठीक है, और कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की एग्जाम्पल एनसीईआरटी मेंशन करते हैं. हमने 11th में भी किया माइस्थीनिया ग्रेविस. ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में हमने पढ़ा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ग्रेव्स डिसीज़ के बारे में पढ़ा. ग्रेव्स डिसीज़ क्या, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, वी हैव दोस बल्ज्ड आउट आईज एंड दिस गोइटर. ठीक है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1.
ठीक है। तो हमें पता है 2 तरीके की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 टाइप 2। सो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 वाली जो होती है, ठीक है। और उसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑल्सो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, दिस इज लिटिल एक्स्ट्रा दैट आई मेंशन, बट याद आधा फॉर आर, ठीक है। तो आ सकता है बिकॉज जब पेपर बनेगा तो ऐसा थोड़ी है ना कि एग्जैक्टली वो टॉपिक वाइज दे हैव ऑल द राइट, द एग्जामिनर हैज ऑल द लिबर्टी एंड ऑल द राइट टू merge topics, merge concepts, because ultimately the entire biology will be tested. It's not just, they're not specifically talking about human health and diseases, so they might merge multiple concepts और पूछ सकते हैं which among these is not an autoimmune disorder, which out of these is an autoimmune disorder. So अब हमने इतने चैप्टर्स में इतने सारे autoimmune disorders पढ़े, disorders of the respiratory system वगैरह में, या फिर बेसिकली हमारे स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है, इतने सारे पढ़े, तो वी शुड एटलीस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक रिमेम्बरेंस, ठीक है, कि माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, ग्रेव्स डिसीज हो गई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 हो गया, एंड ऑल ऑफ दीज। अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, लेट्स रीड अबाउट ऑटो इम्यूनिटी फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बोलती है memory-based acquired immunity evolved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organisms, that is pathogens, from cells. While we still do not understand the basis of this, two corollaries of this ability have to be understood. Now what do we exactly mean by this? ठीक है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, ये जो मेमोरी वाली जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है बेसिकली, विच इज़ बेस्ड ऑन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी, ठीक है, जो हम हायर वर्टिब्रेट्स में इवॉल्व हुई, ठीक है, उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को सेल्फ ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली हम फॉरेन ऑर्गेनिजम्स और सेल्फ में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है, हम सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। वंस अगेन what does NCERT say? NCERT बोलती है autoimmunity. Autoimmunity, NCERT says, memory-based acquired immunity which has evolved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organisms, that is pathogens, from cells. While we still do not understand the basis of this, two corollaries of this ability have to be understood. One, higher vertebrates can distinguish foreign molecules as well as foreign organisms. Most of the experimental immunology deals with this aspect. Two, sometimes due to genetic and other unknown reasons, the body starts attacking cells. This results in damage of the body, and it's called as autoimmune disease. Rheumatoid arthritis, which affects many people in our society, is an autoimmune disorder. अब देखो exactly बच्चा क्या होता है। एनसीईआरटी बोलती है कि हमारे पास जो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, राइट, वी हैव टू काइंड ऑफ इम्यूनिटी, वी हैव इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पीछे पूरा कॉन्सेप्ट ही मेमोरी का है, राइट, द फैक्ट दैट इट हैज़ मेमोरी, इट कैन इट हैज़ दैट मेमोरी, वो याद रखती है कि अच्छा ये पैथोजन बॉडी में पहले एंटर कर चुका है, ठीक है। तो जो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो इवॉल्व हुई हायर वर्टिब्रेट्स में, ये इसका बेसिस क्या है, इसका आधार क्या है? इसका आधार ये है कि पहली बात तो इसे याद रहता है और ये डिफ्रेंशिएट कर पाती है, ये अंतर पता कर पाती है, ये डिफ्रेंशिएट कर पाती है, डिस्क्रिमिनेट कर पाती है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इसे पता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, मतलब कौन बेसिकली सेल्फ है और कौन फॉरेन है, ठीक है। तो इट कैन एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट और डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस। वाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, टू corollaries, while we still do not understand the basis of this, two corollaries of this ability have to be understood, ठीक है। ऑल्सो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि मतलब ऐसा क्यों होता है, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास मतलब ऐसा एग्जैक्टली कैसे, मतलब एग्जैक्टली हमें इसका आधार तो नहीं पता, ऑल्सो हमें पता है कि वो होता कैसे है, वी नो द मैकेनिज्म, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड लाइक कि क्यों हो रहा है ये, लाइक वाई इज़ इट हैपनिंग, ठीक है। तो कैसे होता है एग्जैक्टली वो तो हमें नहीं पता है, बट दो कोरोलरीज का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेज या दो आउटकम। इसके दो परिणाम ये हैं कि मतलब द फैक्ट दैट हमारी जो बॉडी है वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रही है सेल्फ और नॉन सेल्फ की, ऑल्सो इसका आधार क्या है, इसका बेसिस क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है एग्जैक्टली, विदाउट आंसरिंग द वाई ऑफ इट, ठीक है। वी नो हाउ इट हैपन्स, वी डोंट नो द वाई इट हैपन्स एज सच। हमें हाउ तो पता है कि कैसे वो बी सेल्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऑल ऑफ दैट वी नो दैट, ठीक है, बट उसका ऑल्सो हमें आधार नहीं पता है। बट टू कोरोलरीज या टू कॉन्सिक्वेंसेज या दो आउटकम्स इसके हमें जानने की काफ़ी ज़रूरत है। पहला आउटकम तो ये है कि हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म। जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं लाइक अस, हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, हम अंतर पता कर पाते हैं, हम फ़र्क पता कर पाते हैं फॉरेन ऑर्गेनिजम्स में और फॉरेन मॉलिक्यूल्स में एज़ कम्पेयर टू आवर सेल्स, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं वो अंतर पता कर पाते हैं कि अच्छा ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, ये फॉरेन एजेंट है जो हमारी बॉडी में एंटर किया, यानी हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो कहीं पहला तो उसका वो कंक्लूजन है कि ठीक है, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पहला कोरोलरी या फिर पहला कॉन्सिक्वेंस या पहला आउटकम तो ये है कि हायर वर्टिब्रेट्स के पास ये क्षमता है कि हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट, ठीक है। और जो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसी एस्पेक्ट से डील करती है कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। टू, समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन द बॉडी स्टार्ट अटैकिंग सेल्स। लेकिन कभी कभी बच्चा क्या होता है ना,
किसी जेनेटिक रीज़न की वजह से, किसी भी अननोन रीज़न की वजह से जो बॉडी है वो खुद की सेल्स को अटैक करने लगती है. द बॉडी काइंड ऑफ स्टार्ट अटैकिंग इट्स ओन सेल्स एंड दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी. और इससे क्या होता है, बॉडी को बहुत नुकसान होता है. दिस काइंड ऑफ रिजल्ट इन डैमेज ऑफ द बॉडी. ठीक है, बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है इससे. आई एम नॉट एबल टू, once again I'll do it once again, just one more time. All right, now let's move on to acquired immunity. अब देखो ऑटो इम्यूनिटी की, मैं एनसीईआरटी की रीडिंग की बात करूँ तो ऑटो इम्यूनिटी बच्चा कहते हैं, let's read NCERT first. NCERT says memory-based acquired immunity, which has evolved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organisms, that is pathogens, from cells. While we still do not understand the basis of this, two corollaries of this ability have to be understood. One, higher vertebrates can distinguish foreign molecules as well as foreign organisms. Most of the experimental immunology deals with this aspect. Two, sometimes due to genetic and other unknown reasons, the body starts attacking cells. This results in damage to the body and is called autoimmune disease. Rheumatoid arthritis, which affects many people in our society, is an autoimmune disorder. NCERT says this and goes back home. अब देखो समझने की कोशिश करते हैं. एक्चुअली में इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो like you always then you put it then you blame the subject and you start hating it by saying कि अरे ये तो रटने वाला सब्जेक्ट है, बट आप समझ ही नहीं रहे हो तो वो रटना तो फिर पड़ेगा ही ना. तो अब देखो एग्जैक्टली समझो. एनसीईआरटी बोलती है जो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है हमारे पास, स्पेशली जो हाई वर्टेब्रेट्स में हम सबके पास है, राइट, हमको पता है दो तरीके की इम्यूनिटी है. innate immunity, the one that we are born with, and then we have acquired immunity that we gain during our lifetime. अब acquired immunity के पास what जब हमने डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स किए, विच वॉज लाइक ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ द सेशन, ठीक है, जब मैंने डिफरेंसेस को एक्चुअली जॉट डाउन करना स्टार्ट किया तो मैंने क्या बोला कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास एक शक्ति होती है विच इज़ मेमोरी, राइट. इट हैज़ द पावर ऑफ मेमोरी. इट कैन रिमेंबर थिंग्स, ठीक है, इट कैन रिमेंबर द प्रीवियस इनकाउंटर्स. इसको पता है कि बॉडी में कौन आया, कैसे आया, कहाँ तबाही मचाई, ठीक है, तो इट कैन ऑफ रिमेंबर्स इट, ठीक है, विच इज़ वाई ये ज़्यादा इफेक्टिव है, हम इसे बेटर भी बताते हैं, ठीक है. तो कहीं ना कहीं जो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो इवॉल्व हुई हायर वर्टेब्रेट्स में, ठीक है, वो उसके पास एक क्षमता है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है बिटवीन फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंड सेल्फ सेल्स, ठीक है, कि अपनों और परायों में वो फ़र्क कर सकती है. पता है कि अपना कौन है और पराया कौन है, ठीक है. वाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, ऑल्सो हमें इसका आधार नहीं पता है, कि हमें ये पता है हाउ इट हैपन्स, वी डोंट नो व्हाई इट हैपन्स एज सच. हमें ऑल्सो वी डू नॉट रियली अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज द फाउंडेशन, व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि ऐसा ये कैसे कर पा रही. वी नो कैसे कर पा रही, वी नो द हाउ ऑफ इट, वी डोंट नो द वाई ऑफ इट एज सच, ठीक है. तो हमें वाई तो नहीं पता है, बट अगेन इसमें ना ये जो फैक्ट है कि वो आप फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को सेल्फ ऑर्गेनिज्म में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे, इट कैन डिफ्रेंशिएट सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ, ठीक है. तो इसके दो कोरोलरीज हैं विच हैव टू बी अंडरस्टूड. टू कोरोलरी वैसा मतलब होता है द कॉन्सिक्वेंसेज और टू आउटकम्स ऑफ समथिंग, ठीक है. सो जो अब इसकी जो दो कोरिलरीज हैं, इसकी जो दो कॉन्सिक्वेंसेज है वो हमें समझने की बहुत ज़रूरत है. पहला है कि जो हायर वर्टेब्रेट्स हैं दे कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. और मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट. अब पहली चीज़ जो एनसीईआरटी बोलती है वो ये बोलती है कि जो हायर वर्टेब्रेट्स है ना, दे काइंड ऑफ डिस्टिंग्विश, जो हायर वर्टेब्रेट्स जैसे कि हम लोग हुए, हम फॉरेन ऑर्गेनिजम्स वर्सेस फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को, फॉरेन एजेंट्स को कहीं ना कहीं पहचान लेते हैं. और हम पहचान लेते हैं, हमारी बॉडी कहीं ना कहीं पहचान पाती है कि ये अपना नहीं है, ठीक है, ये बाहर से आया है, ठीक है, और ये अपना सगा नहीं है, ये कुछ नुकसान पहुंचाएगा. तो पहला तो ये है कि पहला जो कोरोलरी है या पहला जो कॉन्सिक्वेंस है कि इस मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ये है कि हम फॉरेन को डिफरेंट वी कैन एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट फॉरेन फ्रॉम नॉन फॉरेन, ठीक है, या हम सेल्फ को नॉन सेल्फ से डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं. ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी है, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी, वो कहीं ना कहीं इसी एस्पेक्ट से डील करते हैं कि वो फॉरेन और नॉन फॉरेन के बीच में हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं. तो दूसरी कोरोलरी है दैट समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन द बॉडी स्टार्ट्स अटैकिंग सेल्स. और जो दूसरी कोरोलरी है इसी की कि क्योंकि हमारी बॉडी डिस्क्रिमिनेट कर पाती है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है. कभी कभी क्या होता है, मे बी ड्यू टू सम जेनेटिक रीजन, ड्यू टू सम abnormal म्यूटेशन, या फिर कुछ भी किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, एग्जैक्टली रीज़न स्पेसिफाई नहीं किया और एग्जैक्टली ऐसा रीज़न कोई पिन पॉइंट करके आप दे भी नहीं सकते, ठीक है. कभी कभी क्या होता है ना, बिकॉज हमारी जो बॉडी है उसकी वैसी एबिलिटी कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड, ठीक है, नॉन सेल्फ. तो कभी कभी क्या होता है ना, बॉडी मिस्टेकनली स्टार्ट्स अटैकिंग इट्स ओन सेल्स, ठीक है. तो कभी बॉडी अपनी सेल्स को पराया समझ लेती है और बॉडी खुद के सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है. एंड व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स अटैकिंग इट्स ओन सेल्स, दिस रिजल्ट्स इन डैमेज टू द बॉडी. इससे बॉडी में काफ़ी डैमेज होता है. यार एक बार जो आप अपनों पर वार करने लगोगे, आपकी खुद की बॉडी आपके अगेंस्ट हो जाए तो ऑफकोर्स, ठीक है, बॉडी में नुकसान तो होगा ही, राइट. दैट विल लीड टू ऑटो इम्यून डिसीजेज, ठीक है. उससे कई सारी ऑटो इम्यून डिसीजेज होंगी. एनसीईआरटी तो सिर्फ एक ही मेंशन करती है विच इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच अफेक्ट्स मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी. दैट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट एग्जैक्टली इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कैन यू टेल मी?
अब र्यूमेटॉयड आर्थराइटिस, जैसे कि मैं बोल रही थी, र्यूमेटॉयड आर्थराइटिस बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जैसे कि मैंने बोला, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है स्टार्ट अटैकिंग इट्स ओन सेल्स। अब र्यूमेटॉयड आर्थराइटिस के केस में बच्चा, इफ़ यू पे अ क्लोजर लुक, दिस इज़ व्हाट आवर जॉइंट्स लुक लाइक, राइट। ये हमारे जॉइंट्स है, राइट। ये हमारे कार्टिलेज होता है, और ये जो है हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और ये साइनोवियल कैविटी है, इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब बिकॉज ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है, तो बेसिकली जो हमारी बॉडी है, ठीक है, और ये हमारा इम्यून सिस्टम है, वो अटैक करने लगता है द लाइनिंग ऑफ द जॉइंट्स, राइट। बेसिकली जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इसको कहीं ना कहीं अटैक करने लगता है, एंड इट काइंड ऑफ अटैक्स दिस लाइनिंग ऑफ द जॉइंट्स, और इससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ, देखो दिस इज़ द हेल्दी जॉइंट एंड दिस इज़ द र्यूमेटॉयड आर्थराइटिस वाला जॉइंट, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि जो हमारी लाइनिंग है, द लाइनिंग ऑफ द जॉइंट्स, ठीक है, इट इज़ इन्फ्लेम्ड, वो सूज चुकी है, दिस पेन, दिस रेडनेस, दिस स्वेलिंग, ठीक है। और इसी से क्या होता है, दिस एक्चुअली लीड्स टू र्यूमेटॉयड आर्थराइटिस, wherein the body starts attacking the own, it starts attacking the lining of the joints, वो, ठीक है। तो उसकी वजह से बच्चा क्या होगा, उसकी वजह से there will be an inflammation in the joints, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, सूजन होगी, there will be swelling, there will be stiffness, ठीक है, पेन होगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जॉइंट पेन होता है, हड्डियों का दर्द, ठीक है, जॉइंट्स एरियाज पेन अ लॉट इन ऑटो इम्यूनिटी, once again। अब अच्छा, अगर मैं एक्जैक्टली ऑटो इम्यूनिटी की बात करूँ ना, तो ऑटो इम्यूनिटी में देखो एज सच क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी इज़ बेसिकली नथिंग बट, देखो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, राइट, ऑटो इम्यूनिटी में जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑटो इम्यूनिटी इज़ नथिंग बट व्हेन योर बॉडी, व्हेन योर ओन सेल्स, बॉडी स्टार्ट अटैकिंग इट्स ओन सेल्स, राइट। तो एक्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे ना, ऑटो इम्यूनिटी की अगर मैं समझ गया, अब देखो, अगर मैं बात करूँ र्यूमेटॉयड आर्थराइटिस, ठीक है, तो अब देखो र्यूमेटॉयड आर्थराइटिस को अगर मैं एक्जैक्टली डिफाइन करूँ, तो अभी देखो हमने जैसे कि बोला, र्यूमेटॉयड आर्थराइटिस भी एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ऑटो इम्यून डिसीज़ बच्चा क्या होता है, जब आपकी बॉडी आपके खुद के इम्यून सेल्स को अटैक करने लगती है, मतलब बॉडी स्टार्ट्स अटैकिंग इट्स ओन सेल्स, दैट इज रेफर टू एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में बेसिकली क्या होता है ना, बॉडी स्टार्ट्स अटैकिंग द लाइनिंग ऑफ द जॉइंट्स, ठीक है। बॉडी क्या, ये जो जॉइंट्स की लाइनिंग है, इसे अटैक करने लगती है, ठीक है। तो जब मैंने क्या बोला, जब आपके इम्यून सेल्स आपके खुद के सेल्स को अटैक करने लगे, ठीक है, और इस वाले केस में जो आपकी टिश्यू की लाइनिंग है, बेसिकली द साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, जब बॉडी इसको अटैक करने लगी, इट स्टार्ट अटैकिंग द साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, द लाइनिंग ऑफ द जॉइंट्स, ठीक है। और अगर जो बॉडी आपकी इम्यून सिस्टम इस पर अटैक करने लगती है, दैट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन, दिस इन्फ्लेमेशन इन द लाइनिंग ऑफ द जॉइंट, दिस पेन, दिस स्वेलिंग, ठीक है, दिस स्टिफनेस हो जाती है, जॉइंट्स में काफ़ी दर्द होता है, जॉइंट एरियाज में, दैट इज र्यूमेटॉयड आर्थराइटिस, ठीक है। और डिटेल में हमने र्यूमेटॉयड आर्थराइटिस पढ़ा हुआ है, व्हेन वी डिस्कस द डिसऑर्डर्स ऑफ द मस्कुलर एंड द स्केलेटल सिस्टम। Now moving on to another very interesting topic, which is lymphoid organs. Trust me, you're gonna love this. ठीक है, lymphoid organs again part of the immune system. ठीक है, lymphoid organs की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, exactly क्या आप मुझे बता सकते हैं what exactly are lymphoid organs? देखो, lymphoid organs are basically they're part of the lymphatic system। अब देखो, अगर मैं बात करूँ, तो आपने सबने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में सुना होगा, जब इवन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जो हमने डिस्कस किया था, वी डिस्कस दिस कैटेगोरिकली, वेयरइन वी सेड कि लिम्फेटिक सिस्टम भी एक ऑर्गन सिस्टम है वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, एंड इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेट करा होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ जो एक बॉडी फ्लूइड है वो सर्कुलेट करा होता है। एंड एक्चुअली में टू बी मोर प्रिसाइज, लिम्फेटिक सिस्टम ना भले ही कॉम्प्लीमेंट्री है टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, बट इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, इट्स अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम एज आई सेड। एंड लिम्फेटिक सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जैसे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं इट्स अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब देखो, लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करूँ, विच आर पार्ट ऑफ दिस लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो तरीके के, वी हैव द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड वी हैव द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। बस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करूँ, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, अब देखो लिम्फॉइड से आपको वर्ड समझ में आ रहा है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और हम लोग होता है इम्यूनिटी में हमें कौन हेल्प करते हैं, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, सी लिम्फोसाइट्स। तो अगर प्राइमरी, ठीक है, जैसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज वेयर आर गैमेट्स are produced, right? In the same way, अगर मैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करूँ, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर दोज वेयर देयर इज प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअली हमारे लिम्फोसाइट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं या फिर मेच्योर होते हैं, दैट इज दीज एरियाज आर रेफर टू एज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है, ठीक है। और जहाँ पे हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं, दे बिकम एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। अब ये एक्जैक्टली क्या है ना, वील डिस्कस दिस इन डिटेल। फिर आते हैं हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन सेकेंडरी है, ठीक है, दे आर असिस्टिंग इन अदर एस्पेक्ट्स, ठीक है। अब बेसिकली सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या होता है, द एक्चुअल इंटरैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर्स विद द पैथोजन। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में
जो हम बोलते हैं ना कि लिम्फोसाइट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द पैथोजन, फिर वो जो एक्चुअल फाइट होती है, इट्स लाइक अ बैटल ग्राउंड, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन्स वो है बेसिकली, इट्स योर ट्रेनिंग ग्राउंड, जहाँ पे एक्चुअली आपकी ट्रेनिंग हो रही है, यू आर बीइंग प्रिपेयर टू फाइट अगेंस्ट दीज पैथोजन। और सेकेंडली लिम्फोइड ऑर्गन्स को हम ऐसे कह सकते हैं द एक्चुअल बैटल ग्राउंड, वो एक्चुअल बैटल फील्ड जहाँ पे जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीजन्स या पैथोजन से लड़ रहे हैं। सो इट्स द एक्चुअल बैटल ग्राउंड। आई होप दैट मेक्स सेंस टू एवरीबॉडी, ठीक है। तो I hope the difference is clear. Primary lymphoid organs वो हैं जहाँ पे there is production and maturation of lymphocytes, whereas secondary lymphoid organs are actually those जहाँ पे actually में interaction हो रहा है lymphocytes का antigens के साथ, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। Let's talk about primary lymphoid organs in detail, ठीक है।